Hi everyone, a very good morning to all of you. So as you know, the RBI Grade B short notification has been released and we have now the official exam dates. So your phase 1, my dear friends, is going to be conducted on 18th of October and there is a huge gap between phase 1 and phase 2. इतना gap बहुत ही कम देखा जाता है between phase 1 and phase 2. So there is a gap of 48 days between phase 1 and phase 2. तो नाउ अब आपको अपने प्लान को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है. नाउ टुडे आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ न्यू प्लान. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन 80 days plan. You need to stick to that plan. But in that particular plan, I assumed the examination dates as 25th of October for phase 1 and 22nd of November for phase 2. बट थोड़ा सा चेंज हुआ है. फेज 1 जो है आपका 18 अक्टूबर को है यानी एक हफ्ते पहले, और फेज 2 आपका 22 नवंबर के 2 हफ्ते बाद है यानी कि 6 दिसंबर को है. ठीक है, तो अब हमें उसी प्लान को थोड़ा सा क्या करना है, इंप्रोवाइज करना है. और कैसे इंप्रोवाइज करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट. So I'll take you just 5 minutes and I am going to explain you how you can improvise your plan provided that we have the official exam dates now. ठीक है, and please do not waste any more time my dear friends. ठीक है, मैंने सुबह सुबह वीडियो बना के, सुबह 4 बजे मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था that phase 1 is going to happen on 18th of October and phase 2 is going to happen on 6th of December, and there are 83 number of vacancies which I believe are more than enough for a good fight. You should be fighting for this much number of vacancies. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड टू, मैं आपको प्लान बता देता हूं, बस ध्यान से सुन लेना. देयर इज नो पीडीएफ विच आई एम गिविंग हियर. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ पीडीएफ एंड अगर आपके पास वो नहीं है सो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट वीडियो. अंडरस्टैंड दैट प्लान, डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, अभी आपको मैं बता रहा हूं कि आपको इम्प्रोवाइजेशन क्या करनी है. देखो, today it's 8th of September, right? So till 20th of September, what you will be doing, you will be covering phase 2 plus phase 1 plus current affairs. तीनों आप चलाएंगे जैसा कि मैंने आपको उस 80 days plan में बताया था that you need to divide your days into two parts and for that matter 3 parts. एक में phase 2 करेंगे, एक में phase 1 करेंगे, एक में current affairs करेंगे. So you will continue that particular trend. ठीक है, till which date? Till 20th of September. ठीक है, after 20th of September what you will be doing? After 20th of September what you will be doing? You will be completely focusing on phase 1 plus phase 1 mock test plus current affairs. ठीक है, and current affairs my dear friends here includes PIB, it includes finance current affairs, right? It includes government schemes, it includes annual reports and surveys. So everything is covered in the current affairs thing. ठीक है, now on 18th of October you will have the phase 1. तो ये सब सिलसिला चलता रहेगा 18th अक्टूबर को. तो 18th अक्टूबर तक, 19th अक्टूबर तक आप आराम करेंगे. 19th अक्टूबर को आप आराम करेंगे and you will resume your studies from 20th of October till 4th of December. और इस पीरियड में क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी. ठीक है, now when I am saying that you need to cover phase 2 plus phase 1 plus current affairs till 20th of September, so there are my dear friends 3 subject in phase 2: finance, management and ESI. ठीक है, pick any one subject, either finance और मैनेजमेंट और ESI. इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप पिकअप कर लो जो कि आपको 20 सितंबर तक खत्म करना है. और ऑलरेडी पिकअप कर लो क्या, मेरे हिसाब से 80 डेज प्लान के बाद यू मस्ट बी फॉलोइंग वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते आ रहे थे after that 80 days plan, so my dear friends you need to just continue that and you need to continue till 20th of September. उसको आप कंटिन्यू करेंगे कब तक, 20 सितंबर तक आप कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, और उसके बाद आपका फोकस चला जाएगा सीधा का सीधा फेज 1 और पूरा का पूरा फेज 1 करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट पे. ठीक है, नाउ अब मान लेते हैं कि आपने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया. टिल 20th of September you have completed finance. ठीक है, फाइनेंस. अब आप कहेंगे जी सर मैनेजमेंट और ESI कब करेंगे? भाई साहब बहुत टाइम है. आप देखिए 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर यानी कि यू हैव 44 डेज. ठीक है, इसमें 2 दिन मैंने आपको आराम भी दे दिया है. 44 डेज है. तो भाई जब 44 डेज है तो इन 44 डेज में 30 डेज पूरा का पूरा. ठीक है, जो 30 डेज होंगे उसमें आपका आराम से 2 सब्जेक्ट खत्म हो सकते हैं. मान लेते हैं मैनेजमेंट और ESI आपने बाद के लिए छोड़ा. 15 दिन में मैनेजमेंट खत्म करो, 15 दिन में ESI खत्म करो. ठीक है, 15 दिन में मैनेजमेंट खत्म करो, 15 दिन में ESI खत्म करो. ठीक है, ना अब आप ये कहोगे क्या इन 30 दिनों में सिर्फ मैनेजमेंट और ESI पढ़ना है? नहीं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू. आई थिंक यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा. 20 सितंबर तक आपको फेज 2 प्लस फेज 1 प्लस करंट अफेयर्स करना है, दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए. आफ्टर 20 सितंबर यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन फेज 1 प्लस फेज 1 मॉक टेस्ट प्लस करंट अफेयर्स. ठीक है, एंड कितने मॉक टेस्ट लगाने? एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट लगा के चलने हैं आपको बिफोर द एग्जाम. ठीक है, नाउ अब आपका फेज 1 हो गया. आफ्टर फेज 1 व्हाट यू विल बी डूइंग?
वन सेकेंड, थोड़ा सा रब कर देते हैं, फिर मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बार बार नए नए प्लान्स देने का गाइस कोई मतलब नहीं है, प्लान सब सेम है। 80 डेज प्लान मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा था, आप उसको फॉलो करो और आपका काम बन जाएगा। उसमें थोड़ी सी इंप्रोवाइजेशन करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और जिन लोगों के पास 80 डेज का प्लान नहीं है, प्लीज जाओ और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को मैंने लिंक दे दिया है, उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। आफ्टर ऑल 20 अक्टूबर से लेके आप क्या करना शुरू करेंगे, 20 अक्टूबर से 30 डेज होते हैं 20 नवंबर, ठीक है। इस दौरान आप क्या करेंगे, मॉर्निंग में, लेट्स से इन द मॉर्निंग पीरियड, ठीक है, मॉर्निंग में यू विल बी कवरिंग द फेज टू सब्जेक्ट, ठीक है, आइदर मैनेजमेंट और रीजनिंग, जो भी आपका 15 दिन आपको एक सब्जेक्ट को खत्म करना है। फेज टू से मान लेते हैं मैनेजमेंट से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, ये चलेगा आपका फॉर 15 डेज, ठीक है। और फिर आपने नेक्स्ट 15 डेज में आपको ईएसआई खत्म करना है, तो 30 दिन में मॉर्निंग स्लॉट में आपका ये काम हो जाएगा। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इन द इवनिंग स्लॉट, इन द इवनिंग स्लॉट यू विल बी डूइंग टू थिंग्स, ठीक है। वन इज द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि मैंने आपको दे रखा है उसके अंदर टाइम टेबल के अंदर, और दूसरा आप पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरा आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, बिकॉज करंट अफेयर्स जो है, इफ द एग्जामिनेशन, इफ द फेज टू इज ऑन 6 December, यू नीड टू कवर करंट अफेयर्स टिल 30 November, 30 नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपको करके जाना है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फेज वन, सो एग्जाम इज ऑन 18 October, सो यू नीड टू कवर द करंट अफेयर टिल 11 October, क्लियर है। तो ये आपका सिलसिला चलता रहेगा 20 नवंबर तक। 20 नवंबर के बाद, 20 नवंबर के बाद आपका फोकस पूरा का पूरा चला जाएगा किसके ऊपर, आंसर राइटिंग, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर, और साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है, आंसर राइटिंग प्लस करंट अफेयर्स। 20 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक आप ये करेंगे, ठीक है। 20 नवंबर से 4 दिसंबर, 5 दिसंबर को एकदम चिल करके सोएंगे और 6 दिसंबर को फेज टू का पेपर दे के आएंगे। एंड डू रिमेंबर, व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, डू नॉट राइट ओनली वन आंसर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया आपको एक टेस्ट पूरा लिखना है 1.5 घंटे का इन दीज 45 डेज, और इन 45 डेज में अगर आप रोज एक टेस्ट पूरा लिख के जाओगे, और एग्जाम से एक हफ्ते पहले मैंने उसमें आपको एक शेड्यूल ये भी दिया है कि आपको कम से कम 3 बार, एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको फुल लेंथ मॉक देने हैं। फुल लेंथ का मतलब, व्हेन आई एम सेइंग फुल लेंथ का मतलब क्या है, पूरे दिन में तीनों पेपर देने, ठीक है। तो मान लेते हैं 4 दिसंबर तक कर रहे हैं, तो 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर एंड 4 दिसंबर, इन 3 दिनों को आपको पूरा का पूरा अलॉट करना है, किसके लिए, फुल लेंथ टेस्ट के लिए। फुल लेंथ का मतलब क्या है कि सुबह एफएम का टेस्ट दिया 2 घंटे का, ठीक है, मान लेते हैं 9 to 11 सुबह आपने एफएम का टेस्ट दिया, उसके बाद आपने गैप लिया, फिर 1 बजे से लेके 3 बजे तक आपने ईएसआई का पेपर किया जैसा कि एग्जाम में होता है, और फिर 3 से 4:30 विदाउट एनी गैप आपने इंग्लिश का पेपर दिया। क्योंकि आपको एक ही दिन में तीनों पेपर लिखने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर ये आप फर्स्ट टाइम लिखोगे ऑन द एग्जाम डे इटसेल्फ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए लिखना भी, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा लिखना। इसीलिए वन सेकेंड, या बहुत मुश्किल हो जाएगा लिखना, इसीलिए मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 3 बार फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा के जाओ। और ये जो आप इवनिंग में आंसर लिख रहे हो, ये इसका मतलब है एक पूरा पेपर का। फॉर एग्जाम्पल एफएम का अगर आप लिख रहे हो तो आप 4 आंसर रोज लिख रहे हो इन 1.5 आवर्स, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने प्लान को इम्प्रोवाइज करना है इन दी अपकमिंग डेज, एंड देर आर गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, 83 नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसकी, जो कि फाइटेबल है, जिसके अगेंस्ट आप फाइट कर सकते हो आराम से। एंड जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन अपनी छोड़ दी थी, ठीक है, वो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को रेज्यूम करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू योर स्टडी प्लान, योर स्ट्रैटेजी, प्लीज आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, और डीएम मी ऑन टेलीग्राम, or DM me on Telegram at Mashi Manish. My Telegram ID is Mashi Manish, MASHY MANISH. वहाँ पे आप DM करिए, I'll definitely provide you some solutions. Also, we are we have started the classes of Cut Off Cracker, right? Cut Off Cracker की classes हमारी आज से start हो रही हैं. So if you want to go with this course, you guys can just go to the description and talk to our counseling team, right? So now, thank you very much, my dear friends. I wish you all the very best from the bottom of my heart. Just keep on preparing and keep on preparing hard. Goodbye, take care, and God bless.